Good morning and Jai Hind, my dear kids. Dear students, in the last class, we have discussed till the structure and function of mitochondria. We have seen that in cellular organelles, mitochondria and chloroplasts are studied first. Firstly, because mitochondria and chloroplasts are collectively known as semi-autonomous organelles. ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को मिलाकर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स भी कहा जाता है बच्चों, बिकॉज दीज टू ऑर्गन्स आर हैविंग देयर ओन रेप्लिकेटिव डीएनए। ध्यान दीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया यह दोनों ऐसे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास अपना सेल्फ डीएनए होता है, जिसकी वजह से यह सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी होते हैं और इनकी संख्या सेल्स के अंदर इंक्रीज भी करती रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया की भी और क्लोरोप्लास्ट की भी अकॉर्डिंगली। दैट्स व्हाई चिल्ड्रन, these two organelles are said to be a semi-autonomous organelles and semi-automatic organelles because they both are having replicative DNA, and in mitochondria cellular respiration takes place, that is Krebs cycle, and in chloroplast photosynthesis occurs. So my dear kids, in the last class we have discussed about mitochondria. We have seen that mitochondria is double membranous structure and the inner membrane folded inside said to be as cristae. On the surface of cristae, finger-like threads are appeared said to be as F1 particles and playing very important role during cellular respiration. And inside a mitochondria, proteinaceous matrix is filled in which mitochondrial DNA and some ribosomes are embedded. Now, my kids, see the structure of chloroplast here. Children, as you know that chloro means green, because chloroplast provides the green color, that's why it is named as chloroplast. Basically, these are plastids providing color to various parts of the plant. यह प्लांट के वेरियस पार्ट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं, इनको प्लास्टिड्स कहा जाता है। प्लास्टिड्स वर रिकॉग्नाइज्ड बाय हैकेल, इसको हैकेल ने रिकॉग्नाइज किया था बच्चों, प्लास्टिड्स को हैकेल ने रिकॉग्नाइज किया। एंड प्लास्टिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स इन फैक्ट, व्हिच आर ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस पार्ट के लिए जिम्मेदार होता है, किसी भी प्लांट के पार्ट्स के, ओवरीज वगैरह का जो ट्रांसपेरेंट कलर, ग्रेइश कलर या व्हाइटिश कलर है, उसके लिए ल्यूकोप्लास्ट जिम्मेदार है। जबकि क्रोमो मीन्स कलर, तो क्रोमोप्लास्ट वेरियस कलर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के लिए जिम्मेदार है, एक्सेप्ट ग्रीन। और क्लोरो मीन्स ग्रीन, तो ये क्लोरोफिल कलर पिगमेंट इसके पास होता है एंड इट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द लीव्स and unripened fruits and stem of the plant. So children, plastids are of three types we are seeing, that is leucoplast, chromoplast and chloroplast. But we are going to discuss here chloroplast because it is in our course. But we have seen that beside chloroplast, there are two another plastid exist in plants, which are leucoplast and chromoplast. Now see the chloroplast. Chloroplast basically a plastid that contains high amount of chlorophyll. ध्यान दीजिएगा, a plastid that contains high amount of chlorophyll, green pigment and where photosynthesis takes place. यानी क्लोरोप्लास्ट के दो काम यहाँ पे नजर आ रहे हैं बच्चों आपको। एक तो इसके पास क्लोरोफिल है जिसकी वजह से यह ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स को, और दूसरा क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, that's why it is said to be as kitchen of the cell. ध्यान दीजिएगा, घर कितना बड़ा भी क्यों न हो, लेकिन किचन के बगैर बेकार। तो किचन का एक अलग ही सिग्निफिकेंस होता है बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं किचन के अंदर भोजन बनता है। तो ठीक उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट को किचन कहा जाता है सेल का, बिकॉज इन क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस and green plants manufacture their own food material, that is C6H12O6, by utilizing atmospheric carbon dioxide and water
in the presence of sunlight, and you are seeing here the most important thing is chlorophyll. Children, you should know here that what is the role of chlorophyll. Basically, students, chlorophyll just trap the sunlight. ध्यान दीजिए, chlorophyll just trap the sunlight in the presence of magnesium ion. ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है। बेसिकली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के ग्रुप होते हैं, झुंड होते हैं, जो कि एक साथ में लीव्स के डिफरेंट साइड्स पर रहते हैं और डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को रिसीव कर रहे होते हैं बच्चों। इसी ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को LHC कहा जाता है। LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में रहते हैं जो सनलाइट को रिसीव कर रहे होते हैं। सो चिल्ड्रन, यू आर सीइंग हियर दैट क्लोरोप्लास्ट आर द प्लास्टिड्स that contains high amount of chlorophyll, green pigment providing green color, and where photosynthesis takes place because it is the site of photosynthesis and commonly known as kitchen of the cell. My dear kids, in all the plastids, the chloroplast is the most important kind of plastids in which photosynthesis takes place, and chloroplast were first of all रिकॉग्नाइज्ड बाय सिम्फर। ध्यान दीजिए, प्लास्टिड्स को तो हैकेल ने ढूंढा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट को सिम्फर नाम के साइंटिस्ट ने देखा बच्चों, सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया सिम्फर। ओके, सो नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट हैज एन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट के बाद एक इनर एक आउटर मेम्ब्रेन है विथ एन एम्प्टी इंटरमीडिएट स्पेस इन बिटवीन। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हम लोगों ने देखा था आउटर और इनर के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, और उस स्पेस को चूंकि मेम्ब्रेन के बीच की जगह है इसीलिए उसका नाम रखा जाता है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। सो माय डियर किड्स, द क्लोरोप्लास्ट हैज एन इनर एंड एन आउटर मेम्ब्रेन विद एन एम्प्टी इंटरमीडिएट स्पेस इन बिटवीन said to be as intermembranous space. Inside the chloroplast are stalks with thylakoids called grana, as well as stroma, the dense fluid inside the chloroplast. Children, actually stroma is the proteinaceous dense fluid in which coins like structures are appear said to be as thylakoid, and all the coins are collectively said to be as grana. This thylakoid contains the chlorophyll that is necessary for the plant to go through photosynthesis. As you know that chlorophyll traps the sunlight in the presence of magnesium ion. That's why in thylakoid it is present and trapping basically the coin-like structure thylakoid in which chlorophylls are appear present. Chlorophyll, the color pigment, and trapping the sunlight in the presence of trapping the photons of sunlight in the presence of magnesium ion. So see here, my dear kids, see here the structure of chloroplast, which is commonly known as kitchen of the cell. You are seeing here that chloroplast consists of two layers. This is outer and this is inner membrane. So beside outer and inner membrane, you are seeing children, chloroplast is confined of two layers, two membranes, in fact, outer membrane and inner membrane, and the space between two membrane is known as intermembranous space. Inside chloroplast, proteinaceous matrix is filled, very well known as stroma, in which bilayered structure is stretched from one direction to another direction, said to be as lamellae. Lamella is the plural and lamellae is the singular, lamellae. And on the surface of lamellae, piles of coins-like structures are appeared, children. lamellae के सतह पर सिक्कों के ढेर, कई सिक्के एक के ऊपर एक रख दिए जाए तो piles of coins-like structures are appeared, said to be as granum, and all the granums are collectively known as grana, and one coin-like structure is said to be as thylakoid. ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक एक सिक्के जैसा जो स्ट्रक्चर है इसको थैलाकॉइड कहा जाता है। थैलाकॉइड के पूरे ग्रुप को मिलाकर ग्रेनम कहा जाता है और सभी ग्रेनम को मिलाकर ग्राना कहा जाता है।
यह थाइलाकोइड देख रहे हैं बच्चों आप, इसी के अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, एलएचसी है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं, जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सनलाइट को रिसीव कर रहे होते हैं मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर आपको यह भी जान लेना जरूरी है कि फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप होते हैं बच्चों, दैट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। सो लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द थाइलाकोइड एंड डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द स्ट्रोमा। देखिएगा, लाइट रिएक्शन बहुत ही क्लियर आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये चीजें देखिए अगर देख के आप सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है चीजें 100% अंडरस्टूड हो रही है। तो थाइलाकोइड, ये देखिए थाइलाकोइड के अंदर लाइट रिएक्शन होगा, क्लोरोफिल लाइट को रिसीव करेंगे, ट्रैप करेंगे, और जबकि स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होगा जिसमें C6H12O6 यानी ग्लूकोज का एसिमिलेशन होगा। तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों आप, क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर and the space between two membrane is known as intermembranous space. This one is outer membrane and this one is inner membrane, and inside the chloroplast stroma is filled, and in stroma bilayered structure lamely is stretched from one end to another end of chloroplast, and on the surface of lamely piles of coins like structures are appeared, well known as granum. All the granum are collectively known as grana. And children, one coin like structure you are saying here, one coin like structure is well known as thylakoid, and we have seen that in thylakoid light reaction takes place, whereas in stroma dark reaction of photosynthesis occurs. So children, now see the function. What are the functions of chloroplast? So thylakoid membrane forms a network of latent disc, जो coin like structure हमने देखा, या एक स्टॉक्स में अरेंज रहते हैं जिनको ग्राना बोलते हैं। लाइट रिएक्शन इसके अंदर होता है, मैंने बताया आपको। लाइट रिएक्शन बेसिकली occurs in the presence of light and causes the thylakoid to develop a high concentration of hydrogen ions for the production of ATP by the chloroplast। तो देखिएगा लाइट रिएक्शन जो होता है बच्चों, इसमें थाइलाकोइड के अंदर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बन जाता है। NADP जो है NADPH प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। NADPH प्लस H प्लस यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड डाइहाइड्रोजन, यह जो है बेसिकली एक कोएंजाइम होता है बच्चों। NADPH प्लस H प्लस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट डाइहाइड्रोजन, और इसके बन जाने की वजह से H प्लस का कंसेंट्रेशन थाइलाकोइड के अंदर बढ़ जाता है। ऐसा इसीलिए होता है ताकि एटीपी का प्रोडक्शन क्लोरोप्लास्ट में हो सके। और एटीपी आप जानते ही है कॉइन ऑफ एनर्जी है। दिन के समय में एटीपी और NADPH बनेंगे और रात के समय में इनका एसिमिलेशन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन करेंगे और जिससे ग्लूकोज बन जाएगा। स्ट्रोमा हाउसेस डीएनए, स्ट्रोमा के अंदर डीएनए है, एंड प्रोटीन्स आर इनकोडेड बाय जीन्स इन द न्यूक्लियस विद द प्रोटीन प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्टेड टू द क्लोरोप्लास्ट, और फाइनली वह भी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट का अगर फंक्शन की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और ग्रीन प्लांट्स अपना खाना ग्लूकोज बनाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज ऑटोट्रॉफ्स, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट को भी देख लिया, और इन द लास्ट क्लास वी हैव seen the structure and function of mitochondria. So we should know that mitochondria and chloroplast are replicative bodies and said to be as semi-autonomous organelles of cell. Okay, and now my dear kids, we are going to start the plasma membrane, that is the outermost boundary of animal cell and second outermost boundary of the plant cell. ध्यान दीजिए, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेकेंड आउटर मोस्ट बाउंड्री कहा जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट बाउंड्री तो सेल वॉल होगा। आप जानते हैं प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट। कल हम लोगों ने देखा भी था इसको। तो चूंकि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन दूसरा आउटर मोस्ट लेयर होगा, सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर, और जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल पाया ही नहीं जाता, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है यही सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगा या आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी। So my dear kids, plasma membrane is the outermost boundary of animal cell
and second outermost boundary of plant cell. Now see here, the plasma membrane also called as cell membrane. Plasma membrane को ही बच्चों क्या कहा जाता है? Cell membrane कहा जाता है. Is the membrane found in all cells that separates the interior of the cell from the outside environment. ध्यान दीजिएगा, जो सेल के इंटीरियर पोर्शन का आउटसाइड इन्वायरमेंट से सेपरेशन करते हैं, वहां हर तरीके के सेल में सेल मेम्ब्रेन जरूर पाया जाता है. In bacterial and plant cells, a cell wall is attached to the plasma membrane on its outside surface. आप जानते हैं बैक्टीरियल सेल या प्लांट सेल में सेल वॉल भी अटैच्ड होता है. मैंने भी बताया भी आपको, सेल वॉल आउटर सरफेस पर होता है. इसीलिए प्लांट सेल या बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सेकेंड आउटर मोस्ट बाउंड्री और सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर, वेयर एज इन एनिमल सेल इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री or outermost membrane, outermost layer of the cell. Children, plasma membrane, basically plasma membrane allow the things, the substances to be enter inside the cell and to be exit from the cell. So the structure of plasma membrane is very important. यह बड़ा important हो जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है और कौन कौन से चीज किन किन सब्सटेंसेस को अंदर या बाहर टू एंड फ्रो मूवमेंट अलाउ करते हैं. क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिन चीजों को अलाउ करेगा वही चीज सेल के अंदर आ सकते हैं या सेल से बाहर जा सकते हैं. सो माय डियर किड्स, यू आर सीइंग हियर दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द outermost boundary of the animal cell and second outermost boundary of the plant cell. And now see the structure of plasma membrane. Children, you are seeing here the fluid mosaic model, which is the most accepted model of the structure of plasma membrane. Actually plasma membrane के स्ट्रक्चर के लिए पहले यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी भी दिया गया बच्चों, और यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी में बताया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड. बेसिकली यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी was proposed by J.D. Robertson in 1956. J.D. Robertson ने 1956 में यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी दिया, लेकिन लेटर ऑन बाद में जाकर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज किया गया. और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो आप सामने देख रहे हैं, इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन. ध्यान दीजिएगा, दो साइंटिस्ट जो इन्होंने इसको प्रपोज किए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, उनका नाम था बच्चों सिंगर एंड निकोलसन. तो सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया. यह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आप देख रहे हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट. यह देखिए आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन. मेम्ब्रेन इज मोज़ेक ऑफ प्रोटीन्स बॉबिंग इन अ फ्लूइड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. जिस तरीके से जमीन में मोज़ेक कराया जाता है बच्चों, उसी तरीके से यह मोज़ेक प्रोटीन्स का बन जाता है. इसीलिए और एक फ्लूइड फॉर्म में फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर होते हैं, दो लेयर होते हैं, इसीलिए इस मॉडल का नाम रखा गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. हाइड्रोफिलिक पोर्शंस जो होते हैं फॉस्फोलिपिड के और प्रोटीन के आर मैक्सिममली एक्सपोज्ड टू एक्वस इंटरफेस इंश्योरिंग स्टेबिलिटी. जो ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर ग्लविंग जो पोर्शंस है फॉस्फोलिपिड के और प्रोटीन के, वो एक्सपोज होते हैं एक्वस इंटरफेस की तरफ, वाटर वाले इंटरफेस की तरफ, ताकि स्टेबिलिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ज्यादा हो सके. एंड मोस्ट लिपिड एंड सम प्रोटीन ड्रिफ्ट लैटरली अक्रॉस द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन. और जबकि कुछ लिपिड और कुछ प्रोटीन वह लैटरली पूरे किनारे किनारे पर अक्रॉस द सरफेस प्रेजेंट रहते हैं, जो कि पेरिफेरल प्रोटीन कहलाते हैं. देखेंगे आप स्ट्रक्चर में बच्चों, एक मिनट मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ. यहाँ पर देखिए आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर. यह देखिए आप, जो प्रोटीन अंदर की तरफ धसे हुए हैं इनको इंटीग्रल प्रोटीन कहा जाएगा, और जबकि जो प्रोटीन बाहर की तरफ रहेंगे उनको पेरिफेरल प्रोटीन. देखिए ये लिखा हुआ है पेरिफेरल प्रोटीन, जो आउटर सरफेस पर रहेंगे, और जो अंदर की तरफ रहेंगे वह इंटीग्रल प्रोटीन कहे जाएंगे बच्चों. इंटीग्रल वाले ग्लोबुलर प्रोटीन होंगे और यह देखिए पेरिफेरल प्रोटीन है. और जबकि यह दो लेयर आपको लिपिड का दिखाई दे रहा है, दैट इज बाई लेयर ऑफ लिपिड. यह फैट या लिपिड का बाई लेयर, दो लेयर नजर आ रहे हैं आपको, और जिनमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स स्कैटर्ड रहते हैं. कुछ बाहरी सतह पर, ये बाहरी सतह पर दिखाई दे रहे हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, व्हिच आर सेड टू बी एज पेरिफेरल प्रोटीन.
जो बाहरी सतह पर दिखाई दे रहे हैं बच्चों, इनको पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाता है, पेरिफेरल प्रोटीन। और जबकि जो भीतरी सतह पर है, धसे हुए हैं, उनको इंटीग्रल प्रोटीन कहा जाता है। नजर आ रहा है आपको? एंड दीज आर पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइकोप्रोटीन भी लिखा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब आपस में जुड़ जाते हैं बच्चों, तो इनको ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो नजर आ रहा है, ये आपका पेरिफेरल प्रोटीन है। और जबकि यह इंटीग्रल प्रोटीन दिखाई दे रहा है आपको, इंटीग्रल प्रोटीन। और जबकि बच्चों कुछ ऐसे भी प्रोटीन के चैनल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहलाते हैं, जो दोनों बाइलेयर में क्रॉस करते हैं, जो दोनों बाइलेयर में प्रेजेंट रहते हैं, उनको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल या प्रोटीन चैनल भी कहते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सब्सटेंसेस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस पार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उस पार तक पहुंचाने का काम करते हैं। देख रहे हैं आप, सब्सटेंसेस इस पार से उस पार इस तरीके से जाते हैं। जो प्रोटीन सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, वो प्रोटीन में घुलकर इस पार से उस पार चले जाते हैं। जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, वो लिपिड में घुलकर इस पार से उस पार चले जाते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, वो कार्बोहाइड्रेट में घुलकर, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में घुलकर इस पार से उस पार चले जाते हैं। So my dear kids, you are seeing here the most accepted model of plasma membrane, structure of plasma membrane, which was given by Singer and Nicholson, and it is most accepted. According to this model, plasma membrane appears like fluid mosaic. That's why it is named as fluid mosaic model. And plasma membrane is made up of protein, lipid, and polysaccharide carbohydrate. लिपिड फॉर्मिंग द बाइलेयर, दो लेयर बनाते हैं, in which proteins are embedded. Some proteins are present on the outer surface said to be a peripheral protein, and some proteins are present inside the cell, that is inside the bilayer of lipid, that is well known as integral protein. And some protein molecules are present across the bilayer of lipids, are said to be as transport protein or protein channel. In bilayer of lipids, some polysaccharide carbohydrates are also embedded. So children, in this way, it appears like fluid mosaic. Hence, this model is named as fluid mosaic model. ध्यान रखिएगा, इससे पहले यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी भी दिया गया। जेडी रॉबर्टसन ने दिया यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी, आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। लेकिन यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी को बहुत ज्यादा तरजीह इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए। सो चिल्ड्रन, आफ्टर स्टडी द क्लोरोप्लास्ट, नाउ वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो। नाउ सी here membrane is composed of lipid, that is phospholipid and sterols. प्रोटीन आपने देखा इंटीग्रल, अंदर वाले भीतर वाले इंटीग्रल और आउटर सरफेस वाले पेरिफेरल। और जबकि कार्बोहाइड्रेट दो फॉर्म में थे, जो कार्बोहाइड्रेट फैट या लिपिड के साथ में जुड़े हुए हैं सेट टू बी एज ग्लाइकोलिपिड्स, और जो प्रोटीन के साथ में जुड़े हुए हैं सेट टू बी एज ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन दो फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट, अंदर वाले प्रोटीन इंटीग्रल और बाहर वाले प्रोटीन पेरिफेरल। और जबकि लिपिड भी आपने देखा कि फास्फोलिपिड्स और स्टेरॉल्स के फॉर्म में। तो दिस इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल proposed by Singer and Nicholson, which was the most accepted model for the structure of plasma membrane. Now children, see the most important structure, that is nucleus. Nucleus आप जानते हैं, on the basis of nucleus cells are bifurcated into prokaryotic and eukaryotic cell. तो न्यूक्लियस के बेसिस पर ही सेल्स को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बांटा गया था बच्चों। जहां पर लेस डेवलप्ड, लेस ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस था वो प्रोकैरियोटिक सेल थे, और जहां पर वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस था वो यूकैरियोटिक सेल थे। सो माय डियर किड्स, न्यूक्लियस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ध्यान दीजिएगा, nucleus was first of all recognized by Robert Brown in 1831, and it is said to be as kitchen of the cell। ध्यान दीजिएगा, इसको किचन ऑफ द सेल कहा जाता है बच्चों, सॉरी चीफ इंजीनियर ऑफ द सेल। अभी पीछे आपने देखा, क्या समझे, अभी पीछे मैंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड न्यूक्लियस इज सेड टू बी एज चीफ इंजीनियर ऑफ द सेल।
न्यूक्लियस को सेल का चीफ इंजीनियर कहा जाता है बच्चों, बिकॉज इट रेगुलेट्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल। यह सेल की सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, इसीलिए न्यूक्लियस को चीफ इंजीनियर कहा जाता है। और न्यूक्लियस के बेसिस पर ही सेल्स को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो टाइप में बांटा गया है। So, my dear students, nucleus was first of all recognized by Robert Brown in 1831, and it is said to be as chief engineer of the cell because it regulates all the activities of cell. Here you are seeing the well-defined nucleus, centrally located nucleus is basically consists of the nuclear membrane or nuclear envelope. देखिए ये nuclear membrane या न्यूक्लियर इन्वेलप है, विच कंसिस्टिंग न्यूक्लियर पोर्स। ये देखिए इनके बीच बीच में ये न्यूक्लियर पोर्स हैं, विच आर नॉट ऑर्डिनरी पोर चिल्ड्रेन। या न्यूक्लियर पोर्स ऑर्डिनरी पोर्स नहीं है, दिस पोर्स आर सेलेक्टिव परमिएबल, द थिंग्स दे अलाउ कैन ओनली टू बी इंटर इनसाइड द न्यूक्लियस and can only to be exit from the nucleus towards the cytoplasm. That's why the composition of nucleoplasm is totally separated from the cytoplasm. cytoplasm और nucleoplasm का composition इसीलिए अलग अलग होता है बच्चों। और nucleoplasm के अंदर यह thread like structures scattered दिखाई दे रहे हैं आपको। यह जेनेटिक मटेरियल है बच्चों, जिनको क्रोमेटिन या क्रोमेटिन थ्रेड्स या क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। एंड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन these chromatin threads or chromatin fibers are modified into chromosomes. सेल डिवीजन के समय में यही क्रोमेटिन थ्रेड्स या क्रोमेटिन फाइबर्स क्रोमोसोम्स बनाते हैं। बीच में आपको यह डेंस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस वन इज न्यूक्लियोलस। इसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर आरएनए फॉर्मेशन। आरएनए सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। यह क्रोमेटिन थ्रेड्स या क्रोमेटिन फाइबर्स जो कि क्रोमोसोम बनाते हैं, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है जो साइटोप्लाज्म से टोटली सेपरेटेड है, क्योंकि यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके पास सेलेक्टिव न्यूक्लियर पोर्स है। तो दिस वन इज न्यूक्लियस एंड दिस वन इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ सेल, said to be as chief engineer of the cell because nucleus just controlling, just regulating all the metabolic activities of cell. Here you are seeing again the dense structure nucleolus. This one is the nuclear membrane or nuclear envelope consisting well-defined nuclear pores, and here the thread-like structures are scattered inside the nucleoplasm, said to be as chromatin threads or chromatin fibers, which are modified into the chromosomes at the time of cell division. So, children, in structure of cell, the most important part that is nucleus, and we are seeing here that in nucleus the part are nuclear envelope, that is nuclear membrane, nuclear pores, and chromatin, that is the genetic material containing genetic material, in fact that is the scattered DNA. So my dear kids, if we talk about the function of nucleus, the nucleus controls and regulates the activities of the cell. मैंने बताया आपको चीफ इंजीनियर ऑफ द सेल कहा जाता है इसको। ये ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म, सेल के ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इट कैरीज जीन्स, इट कैरीज द जेनेटिक मटेरियल, स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है वह न्यूक्लियस के पास ही होती है। न्यूक्लियाई आर स्मॉल बॉडीज ऑफन सीन विद इन द न्यूक्लियस, और इसके अंदर कुछ स्मॉल बॉडीज न्यूक्लियाई हमने देखा, जेल लाइक मैट्रिक्स भी देखा, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है बच्चों सेल के सभी एक्टिविटीज को। सो इन दिस वे माय डियर किड्स, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। In today's class, we have discussed about the chloroplast. We have seen fluid mosaic model for the structure of plasma membrane, and then we have seen the structure and function of nucleus. So, my dear kids, in this way, we have seen the discovery portion of cell, the cell theory, and then prokaryotic, eukaryotic cell, differences between plant cell and animal cell, and the structure and function of mitochondria in the last class. And in today's class, we have finished the chloroplast, the plasma membrane, and the nucleus. Children, यह बहुत बड़ा चैप्टर है। हम लोग एक एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के डिस्कवरी, हिस्ट्री और स्ट्रक्चर और फंक्शन को इलेबोरेट करेंगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। नाउ थैंक यू वेरी मच।